coverage to our efforts. As you know, right from the time of the lockdown, there are various events going on. And in the meantime, everyone is suffering, whether they are the little children of the school, or the parents, or the teachers, members of non-teaching staff, principal, school management, bus vendors, drivers, conductors, whatever be the component attached to the school directly or indirectly, all are the sufferers. And we have been always accountable towards our children regarding their well-being. But unfortunately, for the last couple of months, what we have been getting the feedback from various platforms, it is really hurting all of us. We have been putting our best effort to do the best for our children. But in the meantime, we received one appeal from the government, and we were pleased to give positive compliance to that in letter and spirit. And we, on behalf of the Sahodaya, which is an organization of 70 CBSE schools covering the entire North Bengal, we are happy to give positive compliance to the appeal of the government that we will not hike any fee during the lockdown period. In spite of our doing good in all respect for our children, we have from the various social media and the platforms, especially the political establishment, for their own vested interest, they are demanding something which is not practically possible. It is impossible. And we know their problems. उनकी मजबूरियाँ हम लोग समझते हैं. उनके पास कोई चारा नहीं है. उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, वरना इतना बेवफा थोड़ी होते हैं लोग. So anyhow, we have respect for their demand also, but there is a competition among themselves. They are trying to prove better than other. One is demanding for third paper. Third paper coming 12 months. And whatever the other things which we can do for our children, our parents, those who are having the acute financial crisis, they are requested time and again to meet with the school management. And we are confident that the school management, with the best of their financial capacity, do the best for such parents having the financial crunch. No school can offer a blanket cover to all. And here it is our expectation, those parents who are financially solvent, they must come forward to start paying the fee. Because among us, among our 70 schools, many of the schools could not disperse the salary to the members of staff for the last 2 months. And we are not receiving any financial aid from no quarter. So under these circumstances, here comes the question of the survival of the unaided private CBSE schools. And so we make an appeal to the parents that they are an integral part of the school family. And it is their moral responsibility to stand the school in this moment of crisis. Instead of we stand in front of each other, it is better that we stand with each other so that we can combat this period of crisis sooner or later. This period will be over. Again, we have to resume our normal activities in all respects. अपने त्यौहार को हम लोगों को सबको ठीक रखना है, स्कूल मैनेजमेंट को भी व्यवहार ठीक रखना है. हर अभिभावक बच्चों के प्रति कल ऐसा न हो कि कल हमें मिलना पड़े और आगे न मिला सके. ये काम नहीं होना चाहिए. और सौदा की तरफ से सब स्कूलों को अपील की गई है, क्योंकि हर स्कूल के फाइनेंशियल कंडीशन एक समान नहीं है. All 5 fingers are not same. All schools can do the best. They are trying to do the best for their parents. हर स्कूल की आर्थिक स्थितियाँ अलग अलग है. तो हम लोग की अपील ये है कि हम लोग बेस्ट करें पेरेंट्स के लिए. और इसमें क्या यूनिफॉर्मिटी हम लोग नहीं ला सकते, क्योंकि हर स्कूल की आर्थिक स्थिति एक समान नहीं है. किंतु ये एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन कंसेंसस है. इन सम और अदर वे हर स्कूल they have come forward to render. We have submitted a memorandum to the Honorable Principal Secretary, through our Honorable SDO Siliguri, and very clearly mentioned that schools are facing acute financial crunch, and now they are not in a position to disperse salary to their
staff and to meet the standing post of the institution. The fact that schools will continue such later in the year has caused further issues. There are many schools who are not having the financial affordability, sustainability, are at the verge of the closure. Second point we have mentioned regarding the various information which are published from the media platform. ये जो तस्वीर, एक बार आप सभी एसके लाइव के दर्शकों का स्वागत है एसके लाइव में। और ये जो काफ़ी समय से आप सुन पा रहे हैं, ये सहोदया विद्यालय के उत्तर बंगाल के अध्यक्ष डॉक्टर एस अग्रवाल जी एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूल जो है किस तरह प्राइवेट स्कूल किस तरह की समस्या से जूझ रहा है, उससे रिलेटेड जानकारी सरकार तक पहुंचाने के लिए आज एसडीओ के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर तमाम सिलीगुड़ी के तमाम निजी स्कूल के प्रिंसिपल जो है यहाँ पर खुद मौजूद हैं और उनके हाथ में जो है मेमोरेंडम जो ज्ञापन का पत्र है वो आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो है डॉक्टर एस अग्रवाल उसको ब्रीफ कर रहे हैं, प्रेस ब्रीफिंग जारी है, तमाम जानकारी दे रहे हैं। हम उनसे विशेष तौर पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे थोड़ी ही देर में। That parents with financial issues must meet their school authorities on a personal level of relief. That all schools are doing. We have been doing it. So case-to-case basis, we will be handling all our parents and guardians, those who are having the financial issue. We know better about their financial status than any third person. So we are good enough, kind enough to consider in all respect, so that they do not find themselves in a very hard situation during this pandemic crisis. Pandemic has brought problem for everybody alike. Nobody is at the comfort. All are having the same issue. With this only, I appeal to all the people of entire North Bengal. एक बात संक्षेप में फिर से, जो गार्जियन लोग जो लगातार इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने भी डिपुटेशन दिया है, आपका क्या पक्ष है फीस के मुद्दे को लेकर के, उसको जरा सा आप संक्षेप में हमारे दर्शकों और अपना नाम और डेजिग्नेशन बोल दीजिए। मैं डॉक्टर एस अग्रवाल, प्रेसिडेंट नॉर्थ बंगाल सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर में वेस्ट नॉर्थ बंगाल में जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं, इनका एक वैधानिक प्लेटफॉर्म है एज पर द सीबीएसई डायरेक्शन। जैसा कि आपने पूछा कि गार्जियन जो है एक आंदोलन कर रहे हैं फीस, तो मेरा ये कहना है कि जो भी गार्जियन इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं वो गार्जियन है ही नहीं, क्योंकि वी आर अकाउंटेबल टू आवर पेरेंट्स एंड गार्जियंस। दिस इज आवर ड्यूटी टू सेटिस्फाई देयर डिमांड्स एंड वी आर ट्राइंग टू बी बिट हेल्पफुल टू देम इन द मोमेंट ऑफ द क्राइसिस। किंतु जब डिमांड ऐसी होगी जो लेजिटिमेट नहीं है, रैशनल नहीं है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसको मानना संभव नहीं है। हम लोग जितने भी गवर्नमेंट के डायरेक्शंस आएंगे उनका 100% हम लोग पालन करेंगे, प्रतिपालन करेंगे। कोई भी जुडिशियरी डिमांड आएगी 100% हम लोग पालन करेंगे। किंतु जितने भी गार्जियंस आ रहे हैं उसमें ये ढूंढना होगा कि एक्चुअल गार्जियन कितने हैं। सभी उन गार्जियनों से अपील है कि वो अपने स्कूल मैनेजमेंट से मिलें, और हर स्कूल मैनेजमेंट को सहोदया की तरफ से भी अपील की गई है कि वो गार्जियन के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो केस टू केस बेसिस पे हैंडल करें। आपने अपने मेमोरेंडम में एसडीओ साहब को जो लिखा है उसमें क्या बातें रखी हैं? हम लोगों ने गवर्नमेंट के जो पिछले 2 ऑर्डर थे उसका उल्लेख करते हुए उनको अभी की जो यथास्थिति है उसके बारे में बताया है, और हम लोगों ने अपने प्रॉब्लम से उनको वाकिफ किया है। जब हम अपने प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो हम बच्चे से शुरू करके बस कंडक्टर तक की हम बात करते हैं। जितने भी लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ित हैं, सबकी बात हम लोगों ने रखी है। तो एसडीओ साहब ने सुझाव दिया है कि अभी जितने भी मीडिया में जो बातें आ रही हैं वो सिर्फ एक तरफा बातें आ रही हैं। अभिभावक या जो अभिभावक नहीं भी है, कुछ उसमें नोटोरियस लोग हैं, वो इन चीज़ों को हवा दे रहे हैं। तो एसडीओ साहब ने भी बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि हम लोगों को स्कूल पक्ष की तरफ से, सहोदया की तरफ से अपनी बातों को प्रेस फ्रेटर्निटी के सामने रखनी चाहिए।
ताकि सर एक बात बोल रहे हैं कि अभिभावक को प्रेशर दिया जा रहा है। कोई भी प्रेशर नहीं है, गलत है, प्रेशर गलत है, ये 100% गलत है। कोई भी प्रेशर नहीं नहीं है, ये है। जबरदस्ती अपने का highlight अपने अगर मान लीजिए कोई माता पिता अपने बच्चे को दुलार देते हैं हाँ। और बच्चा कहेगा कि हमको थप्पड़ मार दिया, एक ऐसी स्थिति है, ये प्रेशर का सवाल ही नहीं है। अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अभिभावकों के लिए कहना चाहते हैं, देखिए ये जो महामारी है सबके लिए संकट लेके आई है। हम लोग एक दूसरे के सामने न खड़ा हो, एक दूसरे के साथ खड़ा हो और इस संकट के समाधान का रास्ता ढूंढे। पहली शर्त यह है कि हम लोग साथ चलने का वादा करें और उसके अंदर विद्यालय अपने आर्थिक तौर पे जितना संभव हो सकेगा मैक्सिमम करेगा और किसी को अभिभावक को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी भी बच्चे को स्कूल से टर्मिनेट सस्पेंड नहीं किया जाएगा। ये हम लोगों ने सौदा की तरफ से भी अपील की है, गवर्नमेंट का भी ऐसा ही मानना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। जो सक्षम अभिभावक हैं एट द अर्लीस्ट उनको सामने आना चाहिए और आर्थिक संकट की स्थिति में स्कूलों के साथ खड़ा होकर ताकि जितने भी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी वेतन का पेमेंट हो सके, क्योंकि उनका लाइवलीहुड भी जो है सैलरी पर डिपेंड करता है। और जिन गार्जियंस को क्राइसिस के समय में मैंने फाइनेंशियल मैंने जो अभिभावक हैं या जो लोकल पब्लिक है उनको भी बहुत दिक्कत हुआ है। तो क्या आप लोग मैंने अपने फीस स्ट्रक्चर में कोई बदलाव किए हैं? बिल्कुल बदलाव किया गया है। जितने भी जो भी हाइक, देखिए जो भी एक यूजुअल हाइक अलाउड है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि 15% के ट्यून में हर साल विद्यालय की फीस बढ़ सकती है। तो ज्यादातर स्कूलों ने ये जो फीस बढ़ाई थी सारी फीस वापस ले ली गई है, सारी फीस वापस ले ली गई, क्योंकि हमें टीचर का जो यूजुअल इंक्रीमेंट है वो इंक्रीमेंट हमें गवर्नमेंट के नियम के मुताबिक करना पड़ेगा। और एक तरफ हम इंक्रीमेंट देने के लिए बाध्य है और दूसरी तरफ हमारे जो हाइक नहीं होने की वजह से जो रेवेन्यू के अंदर कटेल होगी ये मिसमैच कर जाएगा। सर कुछ दिन पहले तो महाबल कुछ गार्जियन लोगों ने डिपुटेशन दिया था, जो वहाँ का स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो बोल रहा है अगर आप लोग फीस नहीं दे पाएंगे तो आप लोग अपना बच्चा लोग को ले जा सकते हैं यहाँ से। देखिए इस बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है और ये आईसीएसई स्कूल के प्रावधान में पड़ता है, तो बेहतर है वही इस पर प्रतिक्रिया दें। दूसरे स्कूल की प्रतिक्रिया हम लोग कैसे दे चाहूंगी कि सारे स्कूल वाले अपने सारे पेरेंट्स को लेकर एक मीटिंग क्यों नहीं करते? मतलब इससे शायद बेटर सकते? सॉल्यूशन ये पॉसिबल ही नहीं है ना अभी। देखिए अभी चूंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग का मसला है और सारे स्कूल जिसमें एक पेरेंट से लेके 6000 पेरेंट तक है, हम लोग प्लान कर रहे हैं फेज्ड मैनर में। और ऐसा नहीं कि उनसे बातें नहीं हो रही है, हम लोग हो रहा है, हर बच्चा जो है डायरेक्टली स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है। ऑनलाइन सपोर्ट सेशंस चल रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हो रही है इसको हम लोग डिसेमिनेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पेरेंट स्कूल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। कुछ जो है लोगों के उकसावे पर आज हमारे जो है रिस्पेक्टेड पेरेंट्स हमारे सामने खड़े हो गए, ये अच्छी बात नहीं है। स्कूल के साथ ही चलना है और स्कूल कमिटेड है कि बच्चे के ये करेगा, करता भी रहा है और आगे भी करेगा। कुछ गार्जियन फीस देने के लिए रेडी हैं, लेकिन उन लोगों का कहना है कि वो लोग जो स्कूल का बाहरी जो खर्चा है वो लोग वो नहीं देंगे, बल्कि फीस देने के लिए रेडी है। ट्यूशन फीस बाहरी खर्च ट्यूशन फी के अलावा अगर गार्जियन बार हमने 2-3 दिन पहले गार्जियनों से भी बात, जो डेपुटेशन उनका कहना है कि आप ट्यूशन फी अगर आज स्कूल मांगे हम आज दे देंगे, पर अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फी देयर शुड बी आइदर सम कंसेशन और जो भी एक चीज अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फी, नॉट इन ट्यूशन फी। ऐसा नहीं है जो आप बोलिए। अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फीस का मतलब क्या है? मतलब देखिए अगर आप बस का बात कर रहे हैं तो बस के ड्राइवर को भी पैसा देना पड़ेगा, कंडक्टर को भी पैसा देना ही पड़ेगा, उसको फ्यूल का नहीं लेंगे। 30% हमारे सौदे ने पहले ही डिसीजन लेके माफ कर दिया है उसके लिए। तो अगर इस प्रकार के गार्जियन को अगर मिसगाइडेड करते हैं लोग पॉलिटिकल वे पर, तो ये एकदम गलत है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर स्कूल की अपनी फीस स्ट्रक्चर होता है और हर स्कूल हर साल फीस बढ़ाता है। पर इस बार जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमने डिसीजन लिया है कि बड़ी हुई फीस को भी हमने माफ़ कर दिया है, हमने लेट फाइन नहीं लेंगे। अगर किसी गार्जियन को किसी तरह की भी प्रॉब्लम होगी तो पर्सनली आकर हमसे मिलेंगे, हमसे मिल रहे हैं। हमारे वीडियो में बात हो रहा है। बस फीस में भी कटौती की गई है, बस फीस में पहले भी किया गया है, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं। 30% कटौती की गई बस पे, क्योंकि बस के भी ड्राइवर हैं, उनके भी खलासी हैं, उनके भी मेंटेनेंस है, वो भी तो देना पड़ेगा। और आप लोग को पता ही है कि पूरी स्कूल की जो क्या बोलते हैं फीस है, फीस से ही पूरे स्कूल की खर्चे निकलते हैं। वो सैलरी का, जैसे सर ने ही बताया कि बहुत से स्कूल टीचर्स सैलरी नहीं पाते, टीचर्स का क्या दोष है यहाँ? कम सैलरी करके चर्चा हो रही है, डेवलपमेंट फीस स्कूल छोड़ नहीं सकती है। डेवलपमेंट फीस मेरे ख्याल से डेवलपमेंट फीस को अभी कोई स्कूल इस तरीके से
मिसलेनियस फीस कुछ स्कूल चार्ज कर, मिसलेनियस फीस का लैंग्वेज समझ में किसी को नहीं है। पॉइंट देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो मंथली फीस जो होती है इससे सैलरी कम होता है, और जब स्कूल को हम चलाएंगे आने वाले दिनों में जो SOP इशू होगा, जो गाइडलाइंस डायरेक्शंस इशू होंगे कोरोना के मद्देनजर, और उसके अंदर में हम लोग को बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करने होंगे। वहाँ पे जो है एक तो हाइजेनिक जो सैनिटाइजिंग चैनल से लेके और कनाल से लेके बहुत सारी चीजें जोड़नी पड़ेंगी। मुझे वास्तव है इन सब प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थाएं जुटानी होंगी जो काफी महंगी होंगी, और कॉस्ट बढ़ जाएंगे। चिंता हमें ये हो रही है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट SOP को कंप्लायंस करने के लिए कॉस्ट बढ़ जाएंगे, उस वक्त क्या स्थितियां होंगी। इसलिए जो मिनिमम जो गार्जियंस को इनकर करना है मंथली ट्यूशन फीस है, इससे एक समकालीन टीचर्स पेमेंट जो सैलरी है, सैलरी पेमेंट कंपोनेंट पूरा हो जाए, और उसके बाद जैसी भी परिस्थितियां होंगी उसको उस अनुरूप वी विल ट्राई टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन विदाउट पुटिंग एनी एडिशनल बर्डन पेरेंट्स। ये मनोभावना है। सर एक और क्वेश्चन है, जैसे हर एक साल एडमिशन का टाइम में कुछ मतलब फीस इंक्रीज किया जाता है, वो सर कुछ कमाया नहीं जा सकता? वो तो कमा ऑलरेडी पूरे स्कूल की एडमिशन हर अभी हम लोग को पता नहीं, पर हमारे सहोदय की जितने भी स्कूल है, देखिए अभी भी मैम हमारे पास कुछ स्कूल है जो एडमिशन चार्जेस CBSE स्कूल वाले, हाँ, वो चार्जेस थे पहले एडमिशन का, चार्जेस इंक्रीज किए गए हैं। नहीं उनको अगर किसी को इंक्रीज, देखिए फीस बुक तो बहुत ही पहले भी बन जाती है लोगों की। गार्जियन हम लोगों ने ये भी बोल दी अगर फीस अगर बढ़ भी गई है, जो भी फीस बढ़ा है उसको आपको लास्ट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। मैं जानना चाहूंगी, बहुत सारे स्कूल के अलावा भी देखा था कि कुछ स्कूल्स ने फीस वेव किया है, जिसे सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें आप लोगों को बड़ा सजग रहना है। गत दिनों ऐसा देखने में आया है, एक स्कूल है, मैं नाम भी ले सकता हूँ, स्प्रिंगफील्ड एकेडमी जो श्रीरामपुर का स्कूल है, उसके अलावा एक कोई सेंट जोसेफ स्कूल भी कलकत्ते का है। ये स्कूल अभी देर सवेर चालू हुए हैं 2-4 महीना पहले। इनके पास छात्रों की संख्या 50 है। मैंने पूरा पता किया है, स्प्रिंगफील्ड एकेडमी की कोई मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं है, छात्रों की संख्या 50 है। और उन्होंने जो सर्कुलर दिया हुआ है, उन्होंने बताया पेरेंट को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और तीसरा पॉइंट दिया था कि वी आर वेलकमिंग ऑल न्यू एडमिशंस। अब जिस स्कूल में 50 बच्चे हैं, स्कूल की मान्यता नहीं है, वो स्कूल ड्यूटी बाउंड नहीं है। कि जब मान्यता की जब बात आती है तो बहुत सारी लायबिलिटी जुड़ जाती है। गवर्नमेंट का उसमें पे स्केल होता है, उसमें पे स्केल होता है, 6 पे कमीशन की बात आती है। जो स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं है उनके ऊपर में फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। तो इस तरह के जो भुआ स्कूल है उनको आप कवरेज देने से पहले सत्यता को जांचे। तो सर ये जो स्कूल आज जो आप बता रहे हैं ये गलत स्कूल है, तो इससे पहले आप लोगों की संस्था ने आवाज क्यों नहीं? सर गलत स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, गलत आप बोले, गलत स्कूल है। कुछ बड़ी स्कूलों ने भी ये डिस्काउंट घोषणा की है, जिसमें डॉन बॉस्को लिलुआ भी शामिल है। मेरे हिसाब से वो छोटी स्कूल की गिनती में नहीं आती है। देखिए अगर पेरेंट्स बार यही बोल रहे हैं, जिन स्कूलों ने इस तरह की रियायत दी है, जिन स्कूलों ने इस तरह की रियायत दी है, उन सब स्कूलों को हम लोग सैल्यूट करते हैं। और उनका फाइनेंशियल पक्ष बहुत तकड़ा है, फाइनेंशियल पक्ष बहुत तकड़ा है। तो अग्रवाल सर प्राइवेट स्कूल के किस स्कूल का अग्रवाल सर कैसे इसको जानने के लिए उस स्कूल विशेष के अभिभावक सक्षम है। अच्छा एक और चीज मैं जानना चाहूंगी, पेरेंट्स भी लगातार आंदोलन और प्रोटेस्ट वगैरह चालू है, आपने भी डेपुटेशन दिया, ये रस्साकसी कब जाकर खत्म होगा और सोल्यूशन इसका कैसे निकल पाएगा? ये पेरेंट्स मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए ये प्रॉब्लम जिन लोगों का खड़ा किया हुआ है, सोल्यूशन भी उन्हीं के पास है। स्कूल हमेशा जो है कोडियल रहा है, हमेशा ड्यूटी बाउंड रहा है। वी आर रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस। हम अपना काम यथाशक्ति यथासंभव पूरी निष्ठा लगन के साथ करते रहेंगे। प्रॉब्लम जिनने खड़ी की है, सोल्यूशन उन्हीं के पास है। इतने दिनों से मतलब स्कूल चल रहा है और ये एक जो राष्ट्रीय आपदा आई है, ये बहुत सालों के बाद ऐसी आपदा है, तो इतने दिनों से जो स्कूल
इसमें एक बात ये जो आपदा आई है, ये आपदा ने सब लोगों को विक्टिमाइज किया है। इस आपदा के अंदर में सिर्फ पेरेंट्स गार्जियन ही इससे जो है प्रभावित नहीं हुए हैं, हर एक इंसान प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है। और ये हम जब भी बात करते हैं समस्या की तो हम बच्चे से स्टार्ट करते हैं और बस कंडक्टर पे जाके बात खत्म होती है। जितने भी पक्ष इसमें जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सारे लोग बुरी तरह से प्रताड़ित और प्रभावित हुए हैं। ये वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे के सामने खड़े हों, एक दूसरे के साथ खड़े हों, और इस महामारी से निकलने का रास्ता है कि हम एक सॉलिडरिटी यूनिटी होगी, क्योंकि पेरेंट्स अभिभावक वो हमारे अपने परिवार का हिस्सा है, क्योंकि उनके बारे में दर्द ज़्यादा है। बंगला में कहावत है कि मायर थे के मासिर बेदना बेसी, ऐसा नहीं होता है। जितने भी जो तृतीय पक्ष है, जो चाहे वो गार्जियन फोरम हो, इस तरह के लोग हों, उनसे आप प्रश्न पूछे। जो एक स्वयंभू जो सभापति है उनसे आप पूछिए, पिछले 3 महीनों से उनको सैलरी मिल रही है कॉलेज से, मार्च अप्रैल में, और उस सैलरी के अगेंस्ट में व्हाट गुड ही डिड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज। 3 महीने की जो सैलरी उनके अकाउंट पे क्रेडिट हुई है, उस अगेंस्ट में उन्हें क्या भला किया बच्चों का। हम लोग वी हैव बीन ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। हमारे जितने भी टीचर हैं पहले की तुलना में 2 गुना 3 गुना काम कर रहे हैं। बहुत काम कर रहे हैं अब एकदम से टीचर। परिस्थितियां ऐसी बनती है, अब बहुत सारे पेरेंट कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जो है फ्रूटफुल नहीं है। देखिए कितनी फ्रूटफुल है हम लोग जानते हैं। हम लोग का मानना ये है कि हम लोग ऑनलाइन सपोर्ट सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चों को बेस्ट रखने में हम लोग 100% सक्षम हैं, ताकि कोई बच्चा जो स्टेट ऑफ डिप्रेशन एंजाइटी में ना सफर करे, और उनको हम बचाने में पूरी तरह सक्षम हुए हैं। अगर आपको चीज खरीदनी ही नहीं है तो आपको चखने के लिए जो आम दिया गया उसको मीठा हो ही नहीं सकता। वो पेरेंट को हेजिटेशन हो रही है कहने में कि बच्चे बड़ी क्लासों के बच्चे ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं, इंगेज भी हैं, एकेडमिक एडवांसमेंट भी हो रहा है। छोटे क्लास के बच्चे उस अनुपात में उतने लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, पर वी ऑल स्कूल्स आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। बच्चों को कितना फायदा नहीं हो रहा है, आप और पेरेंट्स बताएं, उससे बेहतर बच्चा बताएगा। सही बात। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा सहोदय स्कूल संगठन की ओर से एसडीओ के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपे गए, और जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस अग्रवाल जी, उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। तमाम जो अफवाहें जो फैलाई जा रही थी, और उन्होंने सीधे तौर पर जो संगठन है लगातार जो एक भ्रम फैलाने की स्थिति है उसको जो है निराधार बताया है। और उन्होंने यह बताया कि हम लगातार अभिभावक के पक्ष में हैं और स्टूडेंट के जो है पक्ष में हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इसके लाइन के साथ। धन्यवाद। गुरुजनों का कहना है कि हम जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी बातों को पूरी